Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all my dear friends and English literature aspirants. This is your host Samya Umar and you're watching MA English Part 1 and 2 notes. Today I'm going to cover another very important question. What is linguistics and branches of linguistics? Before watching this video, do subscribe my channel. Let's start the question. What is linguistics? What are branches of linguistics? Firstly, we will give definition of linguistics, the scientific study of language and its structure, including the study of grammar, syntax, and phonetics, is called linguistics. Theoretical or general linguistics encompasses a number of following main branches. The first branch we are going to discuss is descriptive linguistics. जी हम branches discuss करने लगे हैं अब linguistics की पहले हमने definition दे दी है साथ ही हम अब branches discuss करेंगे. Descriptive linguistics is concerned with the description and analysis of the elements of language. Descriptive linguistics में description दी जाती है और analysis दिया जाता है उन elements का जो कि language को बनाने में मदद देते हैं. And the ways in which it is used by a given set of speakers at given time. The time may equally well be the past where adequate written records are available. In descriptive linguistics, we are interested in the operation of language. How does a language work? हम descriptive linguistics में ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से एक ज़बान काम करती है, उसका operation क्या है, उसके functions क्या हैं. Descriptive linguistics is often regarded as a major part of general linguistics. ये general linguistics का major part कहलाया जाता है and certainly the fundamental aspect of the study of language. बुनियादी aspect है ये किसी भी लैंग्वेज को स्टडी करने के लिए हम सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स इस्तेमाल करते हैं. डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज और इसी ब्रांच को 2 कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड किया जाता है. डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स एंड सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स. Diachronic linguistics is derived from 2 Greek words. Dia means through and chronos means time. Diachronic linguistics is concerned with the historical development of language. किसी भी लैंग्वेज की हिस्ट्री को स्टडी करती है डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स और यहाँ पे बयान किया गया है कि डाय और क्रॉनिक से क्या मुराद है. डाय से मतलब है थ्रू, क्रोनस का मतलब है टाइम, मतलब थ्रू टाइम. तो ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को स्टडी करती है. Synchronic linguistics is derived from 2 Greek words. Syn means with and chronos means time. That means with time. So synchronic linguistics is the description of language as it exists at the present day. Synchronic linguistics आज की ज़बान को स्टडी करती है यानी जो प्रेजेंट दौर में जो भी ज़बान की कंडीशन है उसको स्टडी करती है, इसलिए इसको विद टाइम कहा जाता है. Historical linguistics is the study of the development of language. How do change occur in language? What are the causes and results of those changes? All these questions fall in the purview of historical linguistics. Historical linguistics is primarily the study of languages which are recognizably related through similarities such as vocabulary, word formation, syntax. Historical linguistics aims to classify the world's languages by their genetic affiliations and to trace the historic development of language. ये नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि लैंग्वेज की डेवलपमेंट को स्टडी करती है कि किस तरह से चेंज अगर होता है लैंग्वेज में, क्या कॉजेज़ होती हैं और क्या उसके रिजल्ट्स होते हैं. नेक्स्ट इज़ कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स विच इज़ कंसर्न विद कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर डिफरेंट लैंग्वेजेस फ्रॉम 1 और मोर एस्पेक्ट्स. जी 2 या 2 से ज़्यादा ज़बानों के कंपैरिजन को कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स के अंदर स्टडी किया जाता है. इट ट्रेसेस द एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज कि किस तरह से लैंग्वेज जो है वो वजूद में आई थी एंड एस्टैब्लिशेस अ रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज थ्रू मेकिंग अ कंपैरिजन अमंग देम. और ये रिश्ता कायम करती है लैंग्वेजेस के दरमियान उनका कंपैरिजन करके. दिस कंपैरिजन इज़ जनरली कंडक्टेड बिटवीन द लैंग्वेजेस विच आर जेनेटिकली रिलेटेड, that is, those that have developed from some common sources. Language is a mental phenomenon, as our thoughts are expressed in words through language. जी हमारी सोचों को अल्फाज की शक्ल दी जाती है, इसीलिए इसको एक मेंटल फिनोमेनन कहा जाता है. ज़बान का इस्तेमाल जो है वो उसका जहन से बहुत गहरा ताल्लुक़ है और साइकोलिंग्विस्टिक्स को पढ़ेंगे कि साइकोलिंग्विस्टिक्स का क्या ताल्लुक़ है
ज़बान से. Psycholinguistic studies these mental processes such as thought and concept formation and their articulation in language. Psycholinguistics is a very important branch of linguistics और ये वो तमाम मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करती है जैसे कि सोच और कॉन्सेप्ट, अवेयरनेस और उसकी कैसे फॉर्मेशन होती है उस कॉन्सेप्ट की जहन के अंदर, किस तरह से वो आर्टिकुलेट होता है फिर लैंग्वेज की सूरत में. ये सब कुछ साइकोलिंग्विस्टिक्स में स्टडी किया जाता है. which reveal a great deal about the structures of human psychology as well as of language. Human psychology को वो reveal करता है through the use of language. The concept of psycholinguistics was developed in the early 60s. We can see the example of psycholinguistics in the infants, such as how they acquire language from their mother through the method of imitation, how by imitating, learning, and asking questions as they grow. ये साइकोलिंग्विस्टिक्स अर्ली 60s में डेवलप हुई थी और इसकी मिसाल हम देख सकते हैं इन्फेंट्स में जो कि लैंग्वेज सीखते हैं अपनी माँ से और फिर वो इमिटेशन करते हैं. इमिटेशन के ज़रिए वो लर्निंग करते हैं और जब वो बड़े होते हैं तो फिर वो क्वेश्चंस पूछते हैं. It also studies the influence of psychological factors such as intelligence, motivation, anxiety, etc. on the kind of language that is understood and produced. साइकोलिंग्विस्टिक्स उन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को भी स्टडी करती है जो कि ज़बान पे असरअंदाज होते हैं जैसे कि इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, एग्जाइटी और इनको किस तरह से समझा जाता है और फिर ये किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं. For instance, in the case of errors made by a speaker, there may be psychological reasons which influence comprehension or production that are responsible for the occurrence of an error. Our perception of speech sounds or graphic symbols in writing is influenced by the state of our mind. कभी कभी इस तरह होता है कि आप बोल रहे होते हैं या जो लिख रहे होते हैं वो उसमें एरर्स होते हैं बिकॉज़ आपका ध्यान कहीं और होता है या परेशान होते हैं या एग्जाइटी का शिकार होते हैं जिसकी वजह से एरर्स नज़र आते हैं राइटिंग में भी और स्पीच में भी. Psycholinguistics is concerned with the learning of language at various stages. कि किस तरह से ज़बान सीखी जाती है ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ अदवार में. The early acquisition of a first language by children and enter stages in acquisition of first another language. पहली लैंग्वेज वही होती है जो वो माँ से सीखता है और अपने इर्द गिर्द की सराउंडिंग से सीखता है. जिस सोसाइटी में वो रहता है और वहाँ जो लैंग्वेज बोली जाती है वो लैंग्वेज सीखता है, उसको फर्स्ट लैंग्वेज कहा जाता है. Psycholinguistics attempts the answers of questions such as whether the human brain has an inborn language ability structured in such a way that certain grammatical and semantic patterns are embodied in it. कि इंसानी जहन इतना ताकतवर अल्लाह ने बनाया है कि उसमें ये एबिलिटी होती है कि वो लैंग्वेज को एक्वायर करे, उसको सीखे. इंसानी दिमाग इस तरह से स्ट्रक्चर्ड है कि उसमें कुछ ग्रामेटिकल और सिमेंटिक पैटर्न्स जो हैं वो कंबाइन किए गए हैं और इंसान जो है वो आसानी से कोई भी लैंग्वेज सीख सकता है. Psycholinguistics study in language acquisition are very useful in the area of language technology. Psycholinguistics जो है वो स्टडी करती है लैंग्वेज एक्विजिशन को कि किस तरह से ज़बान सीखी जाती है और ये लैंग्वेज टेक्नोलॉजी में बहुत यूज़फुल है. They also help teachers to understand error production and individual differences among learners, thus devise appropriate syllabi and material for them. टीचर्स के लिए भी जो है वो आसानी होती है साइकोलिंग्विस्टिक्स के थ्रू. वो ये समझते हैं कि कहाँ पे एरर आ रहा है और किस तरह से इंडिविजुअल को हैंडल करना है क्योंकि लर्नर्स में ये डिफरेंस होता है. कुछ बहुत तेज़ दिमाग के होते हैं और कुछ थोड़े से जो है वो उनकी मेंटल एबिलिटी इतनी नहीं होती कि वो जल्दी सीख जाएं. तो इस तरह से फिर वो मेथड्स और वो मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं जिनके ज़रिए जो है वो स्टूडेंट्स बेहतर तौर पर सीख सकते हैं.
Next, another very important branch of linguistics is sociolinguistics. Sociolinguistics is a branch of linguistics which explores the relation between language and society. कि सोसाइटी और लैंग्वेज का क्या ताल्लुक़ है आपस में, उसकी स्टडी को सोशियोलिंग्विस्टिक्स कहा जाता है. लैंग्वेज चेंजेस इट्स फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ सोशल कंडीशंस. लैंग्वेज जो है उसकी शक्ल जो है वो तब्दील हो जाती है, उसका स्ट्रक्चर बदल जाता है सोशल कंडीशंस के साथ. फॉर एग्ज़ाम्पल सोशल क्लास, जेंडर, रिलीजन एंड कल्चरल ग्रुप्स. A particular social group may speak a different variety of language from the rest of the community. This group becomes a speech community. एक मखसूस सोशल ग्रुप जो है वो हो सकता है कि वो डिफरेंट वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस बोलता हो. उनकी जिसे कहते हैं ना कि एक ही एरिया में रहने वाले लोग मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं, लेकिन उनकी बोली जो है वो फ़र्क होती है, उनके जो लहजा होता है वो फ़र्क होता है. तो बाकी रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी से वो उनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उनके लहजे से. दिस ग्रुप बिकम्स अ स्पीच कम्युनिटी. और इस ग्रुप को फिर हम कहते हैं कि ये स्पीच कम्युनिटी है, यानी ये एक मखसूस ग्रुप है जिसकी अपनी जो है वो लैंग्वेज है. और एक ही एरिया, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पंजाब है, तो आप ये नोट करेंगे कि पंजाबी हर एरिया में मुख्तलिफ़ तरीके से बोली जाती है, तो इसलिए इसको स्पीच कम्युनिटी कहा जाता है. वेरिएशन इन लैंग्वेज में अकर बिकॉज द स्पीकर्स बिलोंग टू अ डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन, क्लास और स्टेटस. वही जो मैंने अभी आपको बात बताई है कि लैंग्वेज में वेरिएशन इसलिए होती है क्योंकि स्पीकर्स जो हैं उनका ताल्लुक मुख्तलिफ़ रीजन से होता है, मुख्तलिफ़ क्लासेस से होता है, और स्टेटस वाइज भी अगर वो डिफरेंट क्लास से बिलोंग करते हैं तो उनकी लैंग्वेज में डिफरेंस नज़र आता है. The speakers belonging to the educated and higher class may have different way of speaking the same language in comparison to those belonging to the lower or uneducated class. बहुत फ़र्क होता है, आपको नज़र आ जाता है कि एक तालीम याफ्ता किस तरह से बात कर रहा है, उसकी बात करने का अंदाज़ मुख्तलिफ होगा उस इंसान से जो कि जिसने कभी स्कूल देखा ना हो, स्कूल की शक्ल ना देखी हो. तो दोनों में बहुत वाज़े फ़र्क नज़र आएगा. A language also varies among the speakers belonging to different geographical regions with respect to their pronunciation. जी, डिफरेंट जोग्राफ़िकल रीजन्स, जैसे कि मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्से हैं और हर जगह मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस का इस्तेमाल होता है, तो इस वजह से भी लैंग्वेज में वेरिएशन नज़र आती है. For example, English spoken in London varies from that of spoken in other regions of the same country, just as received pronunciation (RP) is a type of spoken English used in the southwest of England and is particularly associated with the universities of Cambridge and Oxford as well the BBC. जी, ये BBC ब्रॉडकास्टिंग में जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, जिसको ब्रिटिश क्वीन एक्सेंट भी कहा जाता है, तो ये स्पोकन इंग्लिश जो है ये यूज़ की जाती है कैम्ब्रिज में, ऑक्सफोर्ड में और BBC में भी. इट इज़ एन एजुकेटेड एंड फॉर्मल काइंड ऑफ इंग्लिश. ये एजुकेटेड और फॉर्मल काइंड ऑफ इंग्लिश कहलाई जाती है, RP जो होती है, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन. द इंग्लिश स्पोकन इन द नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड, फॉर एग्जांपल द यॉर्कशायर एंड लेनशायर इन स्कॉटलैंड, स्पीक इन देयर ओन टोन एंड प्रोनाउंसिएशन. द हर जगह की प्रोनाउंसिएशन और टोन फ़र्क होती है. Similarly, the variety of English spoken in different countries as America, Indo-Pak and Australian English also have variations. मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जो इंग्लिश बोली जाती है उसमें भी हमें वेरिएशन नज़र आएगी. Sociolinguistics studies these variations and changes in the language. Sociolinguistics is based on the fact that language is not a single homogeneous entity but it takes different forms. सोशियोलिंग्विस्टिक्स जो है वो बेस करती है इस फैक्ट पे कि लैंग्वेज जो है वो सिर्फ सिंगल एंटिटी नहीं है, बल्कि उसकी मुख्तलिफ़ शक्लें हैं और वक्त के साथ साथ उसमें चेंज आता रहता है. द चेंजेस इन लैंग्वेज अकर बिकॉज ऑफ चेंजेस इन सोशल कंडीशंस एंड सोशल क्लास, जेंडर, रिलीजन, रीजनल एंड कल्चरल ग्रुप्स एक्सेट्रा. Next branch is anthropological linguistics, which is also a part of sociolinguistics. It studies the scientific area of the evolution of language in society and its role of the formation of culture.
एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स स्टडी करती है लैंग्वेज के साइंटिफिक एरिया को कि किस तरह से एक ज़बान वजूद में आती है एक सोसाइटी में और उसका क्या रोल होता है एक कल्चर को फॉर्म करने में. लैंग्वेज एज अदर कस्टम्स, conventions and codes such as those related to dress, food, etc. also varies on the basis of different customs and conventions of society. यानी लैंग्वेज वेरी करती है जो एक सोसाइटी के कस्टम्स होते हैं, कन्वेंशंस होते हैं, उसके हिसाब से लैंग्वेज में भी वेरिएशन आती है. Each culture has some specifications which identify the customs and values of society. For example, a culture in which family relationships occupy the most significant position will have many kinship terms in their language. जिस तरह हमारी उर्दू ज़बान है, अब इसमें किनशिप के यानी रिश्तेदारी के बहुत ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे चाचू, मामू, ताया, फुप्पो, खाला, ये सब किनशिप की टर्म्स हैं. और क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो माशरा है, उसमें फैमिली रिलेशनशिप्स की बहुत वैल्यू है. विद ईच रिलेशन स्पेसिफाइड बाय पर्टिकुलर टर्म, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है. सो द डाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट कल्चर्स इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स. जी, डाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, ये कल्चर्स को स्टडी करती है बेसिकली एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स. Anthropological studies explores the relation between language and culture कि एक ज़बान और कल्चर का आपस में क्या ताल्लुक़ और रिश्ता है, उसकी स्टडी का नाम एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स है. लैंग्वेज इज़ अ हब टू कम्युनिकेट एंड रिफ्लेक्ट अ कल्चर. लैंग्वेज एक सेंट्रल फोर्स कह सकते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, और वो एक कल्चर को रिफ्लेक्ट भी करती है. उससे अंदाज़ा होता है किसी भी सोसाइटी या किसी मुल्क का क्या कल्चर है, उसकी लैंग्वेज से पता चलता है. द लैंग्वेज बिगिनस टू डिटर्मिन द वे वी थिंक एंड सी द वर्ल्ड. जी, ज़बान से ही मालूम होता है कि हमारे सोचने का अंदाज़ कैसा है और हम दुनिया को किस तरफ देखते हैं. द लैंग्वेज इज़ द मीन्स बाय विच वी अंडरस्टैंड एंड फ्यूल अप आवर थिंकिंग इक्विपमेंट. अल्फाज का चुनाव करते हैं हम अपनी सोचों के ज़रिए, यानी सबसे पहले जहन में सोच आती है जो कि अल्फाज में कन्वर्ट हो जाती है, और वही हम डिपेक्ट करती है कि हमारे सोचने का अंदाज़ क्या है और हमारे पास कैसी थिंकिंग इक्विपमेंट मौजूद है. दीज एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर आर स्टिल बीइंग डिस्कस्ड बाय एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स. ये तमाम एस्पेक्ट्स लैंग्वेज के और कल्चर के डिस्कस किए जाते हैं एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स में. नेक्स्ट इज़ एथनोलिंग्विस्टिक्स. इट इज़ अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्टडी अंडर सोशियोलिंग्विस्टिक्स. ये सोशियोलिंग्विस्टिक्स का ही एक हिस्सा है. एथनिसिटी मीन्स टू मेक गॉसिप इन द लार्ज ग्रुप. Ethnolinguistics studies the variation in the languages on the basis of social interactions among a few human races and cultures. Ethnolinguistics क्या स्टडी करती है? जब लैंग्वेजेस में वेरिएशन होता है, क्योंकि आपस में सोशल इंटरेक्शन होता है मुख्तलिफ ह्यूमन रेसेस और कल्चर्स के दरमियान. Such type of language variation occurs because of immigration of the speaker of their living along the border areas. जब इमिग्रेट करके कुछ लोग कहीं और चले जाते हैं, लेकिन उनकी ज़बान जो है वो कुछ और होती है, तो जब वो अपनी लैंग्वेज बोलते हैं वहाँ जाके, तो उसमें भी वेरिएशन होती है, और जो वो वहाँ की लैंग्वेज सीखते हैं तो उसमें भी वेरिएशन होती है. ठीक है, तो ये सब एथनोलिंग्विस्टिक्स के अंडर आता है. द लास्ट वन इज़ अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स. Applied linguistics is another branch of linguistics in which we study the application of linguistics to solve real life problems that involve the use of language. ये एक और ब्रांच है लिंग्विस्टिक्स की जो कि स्टडी करती है किस तरह से लिंग्विस्टिक्स को अप्लाई किया जाता है ताकि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके जिसमें ज़बान का इस्तेमाल होता है. द एम्फेसिस इन
applied linguistics is on language users and their ways of using language कि किस तरह से लोग ज़बान का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर ज़ोर दिया जाता है. The speech, the literary critic, the translator, the communicator, engineer, the language teacher, the syllabus former and the educational planner, the textbook writer, the dictionary maker have found linguistics beneficial for their particular work. ये जो तमाम फील्ड्स अभी मेंशन की गई हैं इसमें लिंग्विस्टिक्स का प्रैक्टिकली इस्तेमाल किया जाता है. अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स इज़ अ कंज्यूमर और यूज़र फॉर अ प्रोड्यूसर ऑफ theories. जी students, I hope you have understood this question, linguistics and branches of linguistics. This is a really important questions according to Punjab University and other universities. This is frequently coming in the papers. You can check in the past papers as well. I'll be covering more important questions in my upcoming videos soon, inshallah. If you don't understand anything or you have any questions or queries, you are always welcome to comment below. Till then students, this is your host Samia Omar signing off from MA English Part 1 and 2 notes. Don't forget to like my video and subscribe my channel for more informative and quality notes videos. Also press the bell icon for notifications so that you don't miss my videos. Take care and Allah Hafiz.